Branch and Bound, Part 2 of Design and Analysis of Algorithm, Lecture number 30. Branch and Bound is a general technique for improving the searching process by systematically enumerating all candidate solutions and disposing of obviously impossible solutions. Branch and bound usually apply to those problems that have finite solution or in which the solution can be represented as a sequence of options. The first part of the branch and bounding is the branching, and branching requires several choices to be made so that the choice branch out into the solution space. In these methods, the solution space is organized as a tree-like structure. Optimization problem के further क्या है? Note that the standard terminology of the optimization problem, a feasible solution is a point in the problem search space that satisfies all the problem constraints. For example, a Hamiltonian circuit in a traveling salesman person problem are the subsets of items whose total weight does not exceed the knapsack capacity in a knapsack problem. Whereas an optimal solution is a feasible solution with the best value of the objective function, like the shortest Hamiltonian circuit or the most valuable subset of items that fit into the knapsack. Maximization problem. लास्ट ब्रांच एंड बाउंड में हमने मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की थी असाइनमेंट की. इसमें हमने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम करना है. इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम and upper bound tell us the maximum possible solution if we want to follow the given rule. For example, in 0-1 knapsack we use greedy approach to find an upper bound. Example of branch and bound. Assignment problem we already done in the last lecture of branch and bound. Now we focus on the knapsack problem. How branch and bound will be implemented on knapsack problem, and after this we're traveling salesman person problem. Now we start knapsack problem by branch and bound. First, let us discuss how we can apply the branch and bound techniques to solve the knapsack problem. This problem was introduced in section 3.4 also, where we have given n elements of known weights and values from 1 to n and a knapsack of capacity W. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आइटम्स गिवन होते हैं जिनका वेट और वैल्यू होता है. ठीक है, फ्रॉम 1 to n, और एक टोटल कैपेसिटी गिवन होती है जिसकी बेस पे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि knapsack प्रॉब्लम एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो हमें एक इसमें अपर बाउंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. अपर बाउंड की वैल्यू knapsack प्रॉब्लम में हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि ये इक्वेशन हमें हर लेवल पे सॉल्व करनी पड़ेगी. ठीक है, इसमें क्या है, अपर बाउंड इक्वल्स टू v प्लस w माइनस स्मॉल w एंड इंटू वी आई प्लस 1 बाई डब्ल्यू आई प्लस 1. ये जो रेशो है वी आई प्लस 1 डब्ल्यू आई प्लस 1, ये ऑलरेडी हमने सॉल्व करके यहाँ पे एक फोर्थ कॉलम में शो की हुई है. टोटल हमारे पास इस वक्त knapsack की कैपेसिटी 10 है. ठीक है, तो पहले वाली जो स्टेट होती है जब हम ब्रांच एंड बाउंड स्टार्ट करते हैं तो वो ज़ीरो स्टेट होती है, यानी उसमें v की वैल्यू और w की वैल्यू ज़ीरो कंसिडर की जाती है. यानी यहाँ पे आपके पास v और w जो हैं वो ज़ीरो, यानी स्टेट जो ज़ीरो होगी उसके लिए या स्टार्टिंग जो वैल्यू होगी उसमें w और v की वैल्यू ज़ीरो होगी. तो इसके लिए हम जो सबसे पहला नोट बनाएंगे तो v की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कोई आइटम नहीं है ना उसका वेट है. टोटल कैपेसिटी हमारे पास 10 है और माइनस इस वक्त वेट भी कोई नहीं है वैल्यू, और इसके बाद हम वी आई प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 और w आएगा उसके इंडेक्स में भी प्लस 1. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 है, यहाँ से सिर्फ 10 और ये हमारे पास वी आई मल्टीप्लाई हो जाएगा v1 बाई w1 के. वी डब्ल्यू बाई 1 एंड पहले वाले आइटम की रेशो है जो कि है 10. ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 100, यानी कि इंडेक्स जो पहला हम स्टार्ट करेंगे उसमें हमारे पास जो है वो वैल्यू जो होगी अपर बाउंड की वो 100 होगी.
जैसे कि मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। अब इस स्टेज पे हम सारा ट्री आपके सामने शो है, ठीक है। जो W की मैक्सिमम कैपेसिटी है वो हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। तो पहला वाला इंडेक्स W0 VW है, इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, जो कि मैं आपको पिछली स्लाइड्स पे दिखा चुकी हूँ कि वो अपर बाउंड की वैल्यू क्या आती है, 100 आती है, ठीक है। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया है कि अपर बाउंड इक्वल्स टू W भी 0 है, V भी W0 है, तो यहाँ पे देखें स्मॉल v की वैल्यू को हम 0 कर देंगे प्लस और W माइनस 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 हमारे पास क्योंकि स्मॉल w की वैल्यू 0 है, इंटू वी आई प्लस 1 WI1। अगर यहाँ पे 0 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा v बाई W1, और इसकी रेशियो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ठीक है, जो कि हमने हर आइटम की 1 2 3 4 आइटम की दी हुई है। पहले वाले आइटम की वैल्यू ओवर वेट किया है तो वो 10 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई करें, सिर्फ 10 इंटू 10 रह जाएगा, और 10 इंटू 10 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 100, यानी कि जो पहला स्टार्टिंग नोड है उसकी जो अपर बाउंड की वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला नोड बनाने के बाद अब यहाँ से हमें से 2 ही ट्री की ब्रांचेस को हमेशा जो है वो लेके जाना है। एक है हमारे पास विद 1, यानी आप पहला आइटम ले रहे हैं, और विदाउट 1 यानी पहला आइटम नहीं ले रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रोसीड करना है, हर लेवल पे यही इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। विद 1 का मतलब ये कि पहला आइटम और उसका वेट आप ले रहे हैं। विदाउट 1 का मतलब ये कि आप पहला आइटम और पहला वैल्यू नहीं ले रही, स्टैंड अलोय 0 ही रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो आपके पास आइटम की वैल्यू 4 है, आइटम नंबर 1 है, उसकी वेट की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, और वैल्यू की वैल्यू उसकी 40 है। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास b की वैल्यू है 40, ठीक है। और इसी तरह से जो बिग कैपेसिटी है वो 10 है, 10 माइनस 4 इंटू WI प्लस 1 बाई WI, यानी पहले वाले केस में ये V1 था, अब ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, V2 ओवर W2। जो इसकी वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे तो वो रेशियो हमारे पास 6 आ रही है, ठीक है। तो इस केस में हम जब इसको फुली सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 10 माइनस 4 6 इंटू 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 प्लस 36, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 76। तो 76 को जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि अपर बाउंड 76 है। दूसरी तरफ हमारे पास एक और नोड है जो कि विदाउट है, विदाउट यानी उसमें W और V जो है स्टिल 0 रहेंगे। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस वक्त अपर बाउंड क्या होगा, स्मॉल v 0 है, स्मॉल w 10 माइनस 0 इंटू हो जाएगा v। स्टेट हमारे पास 1 वाली है, विदाउट 1 में भी हमारे पास ये v2 ओवर w2 होगा, यानी कि यहाँ से 10 को मल्टीप्लाई आइटम 2 की रेशो से जो कि 6 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन है। तो अब अपर बाउंड में क्या होता है कि हमने ग्रेटर वैल्यू लेनी होती है। तो इस ट्री की वैल्यू, इस नोड की वैल्यू 76 है और इसकी 60 है। इट्स मीन कि हम इस वाले ट्री को प्रोसीड करेंगे 76 वाले को, क्योंकि ये ग्रेटर है, और इस वाले को क्रॉस कर देंगे और इसको फर्दर एलैबोरेट नहीं करेंगे, ठीक है। जब हमने 76 कर लिया, इट्स मीन कि हमने एक आइटम जो एडजस्ट किया वो बिल्कुल सही किया, ठीक है। अब हमने 2 स्टेजेस मजीद लेनी है, कौन सी है, विद 2 और विदाउट 2। विद 2 का मतलब ये है कि आप आइटम 2 ले रहे हैं और आइटम 2 नहीं ले रहे, ठीक है। आइटम 2 कब नहीं लेंगे, अगर उसका वेट आपके पास जो है W से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कैपिटल W की वैल्यू है 10। तो हम वही वैल्यूज़ फिजिबल ले सकते हैं जो कि इस वेट में आएंगे। तो हमारे पास क्या है, जब हम विदाउट
2 करेंगे और विथ 2 करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास पहले W की वैल्यू क्या बन रही है, क्योंकि बात तो यहीं से स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो आइटम है उसकी वैल्यू है 7, जो पिछला आइटम हमने ले चुके हैं उसकी थी 4। तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम वेट लेंगे तो 7 + 4, 7 + 4 हमारे पास इस तरह से 11 आ जाएगा। तो 11 जो है वो हमारे पास जो W कैपेसिटी है कैपिटल की जो कि 10 है उससे बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि ये आइटम 2 हम 1 के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते और ये नॉट फिजिबल नोड बन जाएगा। फिर हम विदाउट 2 लेंगे, वो हमारा मतलब ये कि हम उसमें आइटम 1 तो पड़ा रहेगा, आइटम 2 उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। और अगर हम आइटम 2 इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास अपर बाउंड की क्या वैल्यू होगी, अपर बाउंड जो है पिछली ही वैल्यू के साथ चलेगा, सिर्फ रेशो में चेंज आएगा। 40 + 10 - 0 जो कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में गिवन है। तो हम देख लेते हैं 10 - 4 जो वेट है गिवन होगा तो 6 इंटू हमारे पास रेशो हमारे पास क्या होती है, जो V में हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, V 2 + 1 जो होगी वो 3 होगी, यानी W। ठीक है, तो इट्स मीन कि आइटम 3 की जो रेशो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि 5 है। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 40 + 6 इंटू 5, तो ये हमारे पास टोटल जो है ये हो जाएगा 70, जैसे कि यहाँ पे इस नोट पे मेंशन है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ तक सोल्यूशन आ चुका है कि हमने विदाउट 2, यानी हम 2 को नहीं इंक्लूड कर रहे क्योंकि उसकी वजह से हमारा वेट इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे हम यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं। अब इससे आगे हमने फर्दर जो है वो सॉल्व करना है। अब यहाँ से आगे हमारे पास फर्दर जो है 2 स्टेजेस हैं, विद 3 एंड विदाउट 3। ठीक है, 2 तो हमने लिया नहीं क्योंकि इसका वेट ज़्यादा हो रहा था। क्या हम 3 इंक्लूड कर सकते हैं? तो वो बेसिकली हम W के अंदर जो पहले 4 पढ़ा था उसमें आइटम 3 की जो वेट है वो डालेंगे जो कि 5 है। तो इट्स मीन कि वो कर सकते हैं क्योंकि वो टोटल हमारे पास 9 बनता है और 9 हमारे पास स्टिल मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 10 से लेस है। ठीक है, तो एक हम ये वाला नोट बनाएंगे और एक विदाउट वाला भी बनाएंगे। ठीक है, तो विद वाले में जो कि 9 वेट है और वैल्यू भी उसी तरह ऐड होगी जिस तरह वेट अगर ऐड हुआ 9 हुआ है तो पहले वाली वैल्यू 40 थी। ठीक है, 40 में आपने 3 की ऐड की 25, तो वो हमारे पास होगी 65। ठीक है, तो अब ये दो वैल्यूज़ के साथ हम दोबारा इक्वेशन में अपर बाउंड कैलकुलेट करेंगे तो अपर बाउंड जो होगा वो क्या आ जाएगा, 65। इसको हम सही तरीके से करते हैं ताकि विजिबल रहे। इसमें हमारे पास क्या होगा, 65 + 10 - 9 करेंगे तो ये वैल्यू 1 रह जाएगी इंटू V4/V5। इसकी रेशो क्या है, ये 4, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 1 × 4 एंड 65, ये हमारे पास आ जाएगा 69। ठीक है, 65 प्लस 4 हो जाएगा तो वो 69 आ जाएगा। तो ये अपर बाउंड की वैल्यू 69 हो जाएगी। और इस अपर बाउंड को हम कैलकुलेट करेंगे जो कि विदाउट 3 है, यानी इसके अंदर आइटम 1 और वो तो पड़ा वैसे रेशो का चेंज आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, अपर बाउंड इसके लिए कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 + 10 - 4 6 और फोर्थ आइटम की रेशो क्या है, 4। ठीक है, तो 6 × 6 = 24 और 40। ठीक है, ये हमारे पास 64 आ जाएगी जो कि आगे फिर प्रोसीड नहीं हो रही क्योंकि अपर बाउंड ये 69 है, ये 64 है। अब यहाँ तक हम लोग पिछले स्लाइड में कर चुके हैं। अब हमारे पास विद 3 और विदाउट 3 की 2 नोट्स थी जिसमें से हमने 69 जो कि हायर वाली थी वो सिलेक्ट की थी। अब यहाँ से हमारे पास लास्ट आइटम रह गया है वो 4 है। 4 की हम वैल्यू विद 4 और विदाउट 4 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे तो क्योंकि जो पीछे आइटम हमारा था वो 9 में हमने वेट और ऐड किया 3 तो वो 12 हो गया जो कि फिजिबल नहीं रहा, यानी W जो है वो
फिजिबल इनर 9 जो कि ऑलरेडी 3 के साथ आ रहा था, उसमें आपने 3 ऐड किया तो 12 आ गया, जो कि फिजिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है, उसके इक्वल या उससे लेस ही हम रहें तो हमारा सोल्यूशन फिजिबल में रहता है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये वाला नो प्रोसीड नहीं कर सकते। अब विदाउट 4 में हम जाएंगे, यानी फोर्थ आइटम नहीं लेंगे, सिर्फ 3 ही रखेंगे, सिर्फ रेशियो चेंज हो जाएगी। तो इस लेवल पे अब हमारे पास देख लें W9 और V65 जो कि इस लेवल पे था वो एज इट इज़ नीचे आ गया, सिर्फ हमारे पास रेशो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस लेवल पे हम अपर बाउंड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी 65 प्लस 10 माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे V5 आइटम के रेशो होती तो हम यहाँ इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इट्स मीन के यहाँ पे गिवन नहीं है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हमारे पास 65 ही आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। और जो सोल्यूशन है वो हमारा यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो गया, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। यानी हम इसमें क्या है कि आइटम 1 लेंगे, ठीक है, और आइटम 3 लेंगे, यानी 1 और 3 जो है वो हम इसमें कंसिडर करेंगे और बाकी दो आइटम्स हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये knapsack मेथड है थ्रू ब्रांच एंड बाउंड। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा।